سر صاحب سچویشن خاصی سنگین ہو رہی ہے یا سنگینی کی طرف جا رہی ہے. ہم نے کل پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو 20 پوائنٹ ایجنڈا تھا یا آفر تھی یا جو بھی معاہدہ ہوا بات چیت ہوئی اس کے اوپر ڈیٹیل میں بات کی اور 72 گھنٹے کا وقت دیا گیا تھا کہ حماس اس کے اوپر رسپونڈ کرے. آپ نے کل بتایا آفیشیلی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تو ابھی تک نہیں آیا آفیشیلی, بٹ کچھ سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ ریویژنز حماس کو چاہیے. ایسے میں اچانک پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے ڈیسپریشن میں ایک ٹویٹ ان کے ٹروتھ سوشل پلیٹ فارم پہ آتا ہے جس میں وہ بے صبرے دکھائی دے رہے ہیں اور وہ دھاڑ رہے ہیں اور انہوں نے الٹیمیٹم دے دیا ہے سنڈے ایوننگ کا وقت بھی باقاعدہ انہوں نے بتایا کہ 6 بجے واشنگٹن ڈی سی کے ٹائم کے مطابق اگر آپ نے جواب نہ دیا تو آل ہیل ول بریک آؤٹ اور ایسا ہوگا جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھا. مین وائل وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ معاہدہ دیگر ممالک اس پر سائن کر چکے ہیں. حالانکہ قطر کے وزیر اعظم کی طرف سے بھی ریزرویشن شو کی گئی اور پاکستان کے وزیر خارجہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ وہ نہیں ہے جو ہم سے ایگری کیا گیا. تو اس دھمکی کی کیا حیثیت ہے پھر؟ دیکھیے سچویشن بہت اب خطرناک ایریا میں جا رہی ہے. کل کے پروگرام میں میں نے یہ کہا تھا کہ حماس ٹوٹلی آؤٹ رائٹ اس کو ریجیکٹ نہیں کرے گا, نہ ہی ایکسیپٹ کرے گا. وہ ٹائم گین کرنے کی کوشش کرے گا, کچھ آبجیکشنز لگائے گا اور پھر یہ بات کو آگے بڑھائے گا. مگر میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ اسرائیل نے آلریڈی انڈیکیٹ کر دیا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہ اس میں اور کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اب وہی ہوا, اب اس کو 48 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے جب سے یہ بات چلی ہے. منڈے سے شروع ہوا ہے اور منڈے سے فرائیڈے, تو اب تو کافی عرصہ ہو گیا اور 72 آورس تو اس وقت تھے تو اب پھر اور ان کو 72 آورس مل گئے ہیں سنڈے کی جو بات کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس وقت ایک مشکل کا سامنا, وہ بھی پرابلم ہے کہ اگر حماس نہیں کرتا اور یا لکھ کے دے دیتا ہے کہ یہ چیز کے اوپر ہم آپ سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, ہم آؤٹ رائٹ ریجیکٹ نہیں کر رہے نہ ہی آؤٹ رائٹ ایکسیپٹ کر رہے ہیں, جس کا یہ مطلب ہے کہ وی ڈونٹ ایکسیپٹ اٹ بٹ وی ریڈی ٹو ٹاک. تو کیا ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پھر ریڈی ٹو ٹاک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اگر ریڈی ٹو ٹاک ہوگا تو پھر تو یہ سارا جو ڈرامہ ہے یہ ملتوی ہو جائے گا, پھر وہ ٹاک شروع ہو جائیں گی, وہ قطر یہ وہ ایوری تھنگ ول گیٹ انوالوڈ. تو اب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ حماس کا جو بھی جواب آتا ہے اس کو کیسے ایکسیپٹ کرنا ہے, اور میرا یہ خیال ہے حماس اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا نہ ریجیکٹ کرے گا. اب دیکھیے آگے جا کے کیا ہوتا ہے. مگر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ یس اور نو کرو. اب میں سمجھتا ہوں ڈونلڈ ٹرمپ از ان ٹربل. حماس از ناٹ ان ٹربل, ڈونلڈ ٹرمپ از ان ٹربل. ڈونلڈ ٹرمپ نے اس قسم کی کمٹمنٹ کر دی ہے اسرائیل کو اور کہ اگر انہوں نے نہ مانا تو پھر جائیے آپ جنگ کر دیں, بمبارڈمنٹ پھر سے شروع کر دیں. ٹھیک. اچھا اب صورتحال یہ ہے کہ کوئی بھی اس وقت تیار نہیں ہے کہنے کے لیے, حماس بھی نہیں اور باقی وہ 8 ممالک ہیں, کہ ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. سب یہی کہیں گے کہ اس میں کچھ خامیاں ہیں اور ہم اس کو ڈسکس کرنا چاہیں گے. مگر اسرائیل اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہی ڈرافٹ ہے جو کل کے پروگرام میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے تبدیل کر دیا اوریجنل ڈرافٹ جس کے اوپر انگوٹھا لگوایا تھا انہوں نے یہ 8 ممالک کا, اور آج اسحاق ڈار صاحب نے بھی کنفرم کر دیا ہے اس بات کو. اور اسرائیل یہی چاہتا ہے کہ بس جو ہم کہتے ہیں وہی ہو, اور یہ جو ڈرافٹ اس وقت ہے یہ اسرائیلی ڈرافٹ ہے, یہ وہ ڈرافٹ نہیں ہے جو کہ ان کے جس کے اوپر اتفاق ہوا تھا. سو اب ڈونلڈ ٹرمپ تو نے بدل دیا نا, تو ایک تو اس کی کریڈیبلٹی یہ 8 ممالک کے سامنے اور گر گئی کہ آپ نے ہم سے کچھ کہا, ہم نے اتفاق کیا اور اب آپ نے جا کے چینج کر دیا اور اب آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر ہم اتفاق کریں پھر سے. اور یہاں تک کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے آج ہی پھر کہا ہے کہ یہ جو ڈرافٹ ہے اس کے اوپر 8 ممالک نے اوکے کر دیا, سائن کر چکے ہیں. حالانکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کے اوپر نہیں کیا, ہم نے اس کے اوپر نہیں کیا کیونکہ وہ آپ تو سامنے آیا ہی نہیں ہمارے, ہم تو وہ کیا تھا. تو یہ پہلے دراڑ جو ہے یہ تو آ چکی ہے. اب میں سمجھتا ہوں ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بھی پرابلم ہے کہ اب وہ کیا کریں گے, اور اسی طریقے کے ساتھ یہ جو 8 ممالک ہیں ان کے لیے بھی پرابلم ہے. آج جو سچویشن ہوئی ہے وہ یہ کہ اسحاق ڈار صاحب نے بات کی اور کہا جی ہم نے تو ڈرافٹ بنا لیا تھا اور اپنا کامنٹ کر دیا تھا. اسحاق ڈار صاحب کا ایگزیکٹلی کیا کہنا تھا سنتے ہیں. جمعے کو رات کو جب میں وہاں سے نکل رہا تھا تو یہ فائنل جو ڈرافٹ بنا 8 ملکوں کی طرف جو ڈرافٹ بنا, فیصلہ ہوا کہ جی اب اس کو دوسری طرف ایز پر انڈرسٹینڈنگ ہم بھیج دیں کہ جی ہمارا یہ ڈرافٹ ہے ایز اے کاؤنٹر ڈرافٹ ٹو یو. اگلے دن کیونکہ 8 گھنٹے 9 گھنٹے کا سفر تھا تو مجھے کنفرم کر دیا گیا کہ امریکن سائڈ کو ڈرافٹ مل گیا. یہ سیٹرڈے کا دن. یہی ایک راستہ تھا کہ جہاں یونائٹڈ نیشن فیل ہو گیا, جہاں سیکورٹی کونسل فیل ہو گئی, جہاں عرب ممالک خود فیل ہو گئے جوائنٹلی, جہاں OIC فیل ہو گئی جو اسلامی تنظیم
तंजीम 57 मुल्क की है, सेकंड लार्जेस्ट मल्टी लेटरल फोरम, तो फिर क्या रास्ता था? तो अगर आप इसहाक डार साहब का बयान सुने तो आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि ये मुश्किल, इनके लिए मुश्किलात पैदा हो गई हैं, क्योंकि ट्रंप ने जाके कुछ और कर दिया है। उसने इजराइल का ड्राफ्ट ले लिया, इनका ड्राफ्ट नहीं लिया। अब इनमें प्रॉब्लम ये बनी, अब ये क्या करें? ट्रंप के साथ टक्कर तो ले नहीं सकते, तो इन्होंने ये फैसला किया है कि हम अपना जो अब मौक़िफ़ है वो ज़रा लिख दें कहीं। बेसिकली ये डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए कुछ और कर लें, ये नहीं कि डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, तो अब ये कि हम लगा देते हैं अपना मौक़िफ़, जो कि उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर भी बात कर ली, मगर उसकी अब कोई अहमियत नहीं होगी। ये सिर्फ अपने आप को टू सेव देयर स्किन, उससे जो कम काम करवाना था करवा लिया, इन्होंने अपने ड्राफ्ट दे दिया, उसने जाओ ये इजराइल का ड्राफ्ट चलेगा। अच्छा। तो अब ये क्या करेंगे बेचारे? आई फील सॉरी बिकॉज दे हैव नो चॉइस। बट वज़ीर आज़म ने जिस तरह से ट्वीट करके अप्रिशिएट कर दिया, इस तरह से ट्वीट करके ये भी तो कह सकते हैं कि ये हमारा ड्राफ्ट नहीं है और हम अग्री नहीं करते। नहीं, तो उन्होंने वो कह दिया ना अपने स्टेटमेंट में कि हमने इस ड्राफ्ट, ये हमारा ड्राफ्ट नहीं है, मगर आप कैरी ऑन करें, कुछ पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हम डिसएग्री करते हैं, मगर देखा जाएगा। इन्होंने गोल करने की बात की है, अपनी इज्जत बरकरार रखने के लिए इन्होंने थोड़ा सा अब एक बयान बना दिया है कि ये वो नहीं है, क्योंकि ये जो है इसके ऊपर तो बड़ी तनकीद हो रही है ना, तो इसको कैसे मलकियत लेंगे ये 8 के 8? नहीं ओन कर सकते, ये नहीं ओन कर सकते, तो इसलिए अपने लिए गुंजाइश छोड़ी है। हम कह दें कि जी मसला है इसमें, ये है वो है वो है, तो मगर जो अगला जो इशू है कि अब जो ट्रंप ने, तो इधर तो क्लियर हो गई कि इन लोगों की कोई हैसियत नहीं है ट्रंप के आगे। उसने इजराइल का ड्राफ्ट लिया, इनके ड्राफ्ट की छुट्टी करा दी जी। कल के प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि इनका जो ड्राफ्ट था उसके ऊपर इजराइल ने और जैरेड कुश्नर ने बैठ के ठीक ठूक करके उसको ये दे दिया। ये तो अब अंगूठा वाले लग गए हैं सारे, और ये कर भी कुछ नहीं सकते, ट्रंप को नाराज़ नहीं कर सकते। सो इसीलिए इन्होंने ये जी हमने अपनी वेबसाइट पे लगा दिए। सो मैं समझता हूँ ये पहली जो क्राइसिस आई है इधर आई है, एंड दे आर ऑल इन ट्रबल, ये मैं आपको बता दूँ। सो आई थिंक पाकिस्तान शुड ट्रेड वेरी केयरफुली ओवर हियर, नंबर 1। नंबर 2, अब ट्रंप क्या करेगा? अब अगर ट्रंप जो मैंने जहाँ से बात शुरू की आज, अब अगर वही होता है जो मैं कह रहा हूँ कि हमास जो है वो कहेगा कि हम रिजेक्ट नहीं करते, एक्सेप्ट भी नहीं करते, हमारे कुछ तहफ़्ज़ात हैं, इसके ऊपर बात करें हमारे साथ, तो क्या वो रास्ता ट्रंप करेगा या ट्रंप कहेगा रिजेक्टेड और इजराइल को कहेगा शुरू कर दो बमबारी? तो मैं समझता हूँ कि वी आर हेडेड इन दैट डायरेक्शन, क्योंकि मैंने कहा था कि इजराइल ने अनाउंस कर दिया है कि ये पॉइंट्स मेक कर रहे हैं ना साथ कि जी 2 स्टेट सोल्यूशन, तो उसने कह दिया ये है ही नहीं जी। उसने अपने ऑडियंस को हिब्रू के अंदर जो कल लेक्चर दिया है उसमें यही कहा है, और उसमें जो सारी दुनिया के अंदर जो तबसरे हो रहे हैं कि इसके अंदर ये इजराइल का ड्राफ्ट है, ये किसी और का नहीं है, तो इसलिए इसको नोबडी इज एक्सेप्टिंग इट। सो मेरा ख्याल है कि ये ड्राफ्ट चलेगा नहीं, और एंड मुमकिन है कि ये अगले राउंड में इजराइल विल स्टार्ट बॉम्बिंग अगेन। दिस इज़ व्हाट आई फेयर। और मैंने कल भी कहा था कि इजराइल ने ईरान के ऊपर भी उसको भी टारगेट किए हुए है, तो ये मुमकिन है कि एक राउंड और ऑफ बॉम्बिंग होगी, उसके बाद फिर ये मामला जो है इसको फिर उठाएंगे। उनका ये ख्याल है कि हमास कमज़ोर है इस वक्त, इसको ख़त्म करना है। और कल के प्रोग्राम में मैंने आपसे कहा था कि कभी भी हमास अग्री नहीं करेगा हथियार गिराने के लिए, ये हमेशा आखिरी स्टेज होती है, पहली स्टेज ये नहीं होती। तो ये तो पहली स्टेज में चाहते हैं, ये होगा नहीं। उसकी वजह ये है कि ये उनको ट्रस्ट नहीं करते, वो इनको ट्रस्ट नहीं करते। आज वो हथियार गिरा देता है जी, और चले जाते हैं सारे बाहर छोड़ के, तो इजराइल कहता है ठीक है अब हमने ले लिया, सब कुछ ख़त्म हुई बात, अब हमारा मकसद, तो क्या कर लेंगे? फिर तो लड़ भी नहीं सकते। तो ये तो दे विल बी एट द मर्सी ऑफ इजराइल कम्प्लीटली, तो दे नेवर एग्री टू दिस। मगर उनके पीछे ईरान खड़ा है, उनके पीछे और कोई मुस्लिम ममालिक नहीं खड़ा, उनके पीछे ईरान खड़ा है। ईरान को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, उसको रोकना पड़ेगा। सो आई थिंक मुझे जो लग रहा है, मुझे ख़तरा मुझे नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान खड़ा कहाँ होगा। मैं आपको बता दूं कि बाकी किसी मुस्लिम मुल्क में जो पब्लिक ओपिनियन है वो अभी बाहर सड़कों पे नहीं आया अगेंस्ट देयर रेजीम्स। तो सारी मोनार्कीज़ हैं, वहाँ तवक्को भी नहीं है। हमारे यहाँ सिचुएशन इज़ डिफरेंट। आवर गवर्नमेंट शुड बी वेरी केयरफुल। इस वक्त सारी दुनिया में इरप्शंस हो रहे हैं प्रो पैलेस्टाइन, मगर बात यह है कि पाकिस्तान के लिए ऑप्शंस क्या हैं। इस वक्त उनको थ्रेट है फ्रॉम इंडिया, थ्रेट है फ्रॉम अफगानिस्तान, और अगर अमेरिका उनका साथ, पाकिस्तान का साथ नहीं देता इस मुश्किल वक्त में, तो then we are in even more bigger trouble. So we are in a very serious
ट्रिकी सिचुएशन। एक तरफ अमेरिका को अपने साथ रखना है, जी। चाइना को अपने साथ रखना है, इंडिया को आने नहीं देना करीब, उधर मुस्लिम ममालिक के साथ इकट्ठा एजेंडा बनाना है ताकि वो ये ना समझें कि उनको डिजर्ट कर गए। इट्स अ वेरी ट्रिकी गेम एंड आई थिंक इसके अंदर ज़्यादा सोच विचार होनी चाहिए। और ये जो फियास्को हुआ है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसका हवाला दे रहा हूँ, ये जो शमा जुनेजो का जो फियास्को हुआ है, उससे ऐसे लगता है कि दे आर गवर्नमेंट इज़ नॉट हैंड्स ऑन। इनका अभी भी एटीट्यूड जो है वो इट्स लिटिल कि हाँ हो जाएगा कर लाएंगे। अब ये पता चला है शमा जुनेजो की बात कि जी वो तो प्राइम मिनिस्टर साहब के लिस्ट में थी, फॉरेन ऑफिस की लिस्ट में थी नहीं। ये क्या कह रहे हैं सागदार साहब, सुने सुन तो ले कैसे क्या एक दूसरे की तरफ फेंक रहे हैं। हाँ। जो डेलीगेशन जाता है यूएनजी में, ऑफिशियल डेलीगेशन, उसके लिए वजीर खारजा लेटर ऑफ क्रेडेंस इशू करता है। वो लेटर मैंने साइन किया, उसमें ये नाम नहीं था ये जो फरमा रहे हैं। एक होता है पीएम एंटूराज, उसमें उनके वैले भी हैं, उनके मुलाजमीन भी हैं, उनके स्पीच राइटर्स भी हैं, उसमें उनका नाम था। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि लेटर ऑफ क्रेडेंस में उस खातून का नाम नहीं था। मतलब ये कि मुझे नहीं पता, प्राइम मिनिस्टर की एंटूराज है, वो प्राइम मिनिस्टर को पूछे कि वो उनके साथ जो गए हैं वो उसकी लिस्ट वही करते हैं। तो मतलब है कि चलो उन्होंने पूछो मैंने ना पूछो, मैं तो ओके नहीं किया। अच्छा, अब बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब बेचारे क्या करेंगे। हाँ। प्राइम मिनिस्टर की एंटूराज जो है ना वो सारी की सारी यूएन नहीं जाती। अच्छा, ये कहना कि वो तो उनकी लिस्ट में है, प्राइम मिनिस्टर की लिस्ट में है एंटूराज की, जो यूएन की लिस्ट है वो मैंने बनाई थी। तो फिर अगर आपकी यूएन की लिस्ट थी तो उसमें ये साहिबा कहाँ से उठ के आ गई उस लिस्ट में? तो बिल्कुल आपकी बात पे ही तकिया कर लेना चाहिए। वो हम सोचते थे गेन सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह, वो हुआ कि डिफेंस मिनिस्ट्री से इधर फॉरेन मिनिस्ट्री से प्राइम मिनिस्ट्री एंड देन पीछे गए। ये अपनी तरफ से स्मार्ट हो रहे थे, बस इससे ज़्यादा आप मेरे से मत पूछें। अच्छा, तो अगर इतना एतराज़ आया था तो इसको स्मार्टली कैसे हैंडल किया जा सकता था? क्या रिस्पांस देना चाहिए था? वन लाइनर। They should have said yes, हमने we have asked for credentials of her, we think she is a useful asset। कहते मान जाते हैं ना कि हमारे एहसास से। अच्छा, नहीं माने ना, अभी तक डिनाई कर रहे हैं। फॉरेन ऑफिस, कैन यू इमेजिन कि फॉरेन ऑफिस ने बयान दे दिया हम तो जानते ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है। जी। यार ये कैसे आपका एम्बेसडर, उसके वहाँ डिफेंस अटैची है, उन्होंने ये सारी जो यूएन में जाना था वो वही बनाते हैं ना फाइनल लिस्ट। वो बेसिकली फॉरेन ऑफिस भेजता है, उसके अंदर ऐड सब्ट्रैक्ट होता है, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं वो डाल देते हैं। तो ये सीधी सी बात करते, क्यों इसको छुपाने की कोशिश की है? और अब वो खातून के साथ जो ज्यादती हो रही है उसको सारे गालियां दे रहे हैं और इन किसी कोई मानने के लिए तैयार नहीं कर रहे, साथ लेके गए लेकिन ओन नहीं कर रहे। तो ये बिल्कुल ये दिस शोज के गवर्नमेंट जो है वो इट्स नॉट, कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इनसे गलती हो गई है यार, सीधी सी बात है। इनको पता ही नहीं था कि खातून के बैकग्राउंड में वो क्या उनका पोजीशन रही है विज़-अ-वी इजराइल एंड सो ऑन। या सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करना है, इस हवाले से कोई एसओपीज भी नहीं जारी किए गए कि आप ऐसे ट्वीट्स ना करें जो बाद में आपको डिलीट आई एम सॉरी, वेरी एमेच्योरिश। सो अनदर थिंग जो इसहाक डार साहब ने मेंशन की, हम इस शो में अक्सर बात करते आए हैं ग्रेटर इसराइल के मामले पे भी और अब्राहम अकॉर्ड्स के मामले पे भी डिस्कस करते आए हैं। और जब ये पैक्ट हुआ तो आपने कनेक्ट भी किया डॉट्स को कि मामला कहाँ तक जा सकता है। अब इसमें ये इशू आ गया इजराइल एंड हमास वाला। हमारे वज़ीर आज़म UNGA इजलास में शिरकत के बाद लंदन गए, लंदन से वो पाकिस्तान वापस आ चुके हैं और पार्लियामेंट को वो बताएंगे पाक सऊदी दिफाई मुआहदे के हवाले से। आपने उस पर भी प्रेडिक्ट किया था कि कितनी डिटेल्स आ सकती हैं। मीनवाइल इसहाक डार साहब, डिटेल नहीं मिलनी। जी आपने प्रेडिक्ट किया था। अब इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म बताएंगे तफसीलात इस मामले की। सो अनदर थिंग जो उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के बाद कई अरब और दीगर मुस्लिम ममालिक भी दिफाई मुआहदे का हिस्सा बनना चाहते हैं, जिसके बाद ये एक नया नेटो तर्ज का इत्तेहाद बन जाएगा। इस पे भी आप इज़हार ख्याल कर चुके हैं, लेकिन इसहाक डार साहब के इस यादे के बाद आप क्या समझते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। नेटो कुछ और चीज़ है, ये कुछ और चीज़ है। सो इसलिए मैं इस पर ज़्यादा डिटेल नहीं जाना चाहता। ये होगा नहीं, ये नेटो शेटो कोई नहीं बनना और पाकिस्तान को बड़े केयरफुली चलना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप को आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। डोनाल्ड ट्रंप कैन डंप यू टुडे, आज वो तारीफ़ें कर रहा है आपकी, कल आपको डंप, इनको पता है। आई थिंक इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन फॉर पाकिस्तान। बड़ी मैच्योरिटी की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा मैं ना ही कहूँ तो बेहतर है।